علامہ صاحب کی مجلسیں یوٹیوب پر اور پوری دنیا میں اردو زبان میں دیکھی سنی اور پسند کی جاتی ہیں۔ وہاں حضرات کے مومنین سے گزارش ہے کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ ان کی علمی گفتگو کو آپ سماعت کروائیں، یقیناً استفادہ ہوگا اور ثواب دارائن ملے گا، آپ کے بھی اضافہ ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب سیدنا مختار حسن نقوی صاحب سے کہ وہ منبر پہ آئیں اور مومنین کے قلوب کو مزید منور فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يضرب ولا يحصي معه ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بالهمم ولا يناله سلطة الذي ليس بصفته حد محدود ولا ناد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الغياب برحمته ورتب بالصدور مولانا أرزه ثم الصلاة والسلام على صاحبة الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعون الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعصر الفاطمية والعلوم الكاظمية والعبد الركنية والجود التقوية والنبوة النقلية والعادة الأسفلية والغيرة الإلهية أبو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد۔ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره وذكري وذكر الله وذكر الله تبارك صلى الله عليه محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محسن سامعین کرام اور حسین کی چاہنے والوں اور حسین پر ماتم کرنے والوں، بہت حسین جملے پیش کر رہے تھے شہزاد بھائی آپ، اور آپ کی ہی اب باتوں سے اب متصل کر لوں گا اور اپنی اس موضوع کو چھوڑ کر آپ کے موضوع سے ملا دوں گا۔ آپ نے بات کی خاطر شفا، سنیے اب اسی پہ ہی بات ہوگی۔ آپ نے بہت بہترین موضوع مجھے دیا، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ اب دیکھیے حسین کس کمال ذات کا نام ہے، اور دیگر مجلس میں نے بتایا تھا کہ حسین کس ذات کا نام ہے اور حسین کس با کمال ذات کا نام ہے۔ دیکھیے اور وقت زیادہ ہو چکا ہے اور موضوع طویل نہیں رکھوں گا، لیکن ایسا موضوع رکھوں گا جو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ سنیے کیا ہے خاک شفا، حسین کس نام کو کہا جاتا ہے اور کس ذات کو کہا جاتا ہے۔ حسین وہ ہے جہاں حسین کا خون گرے اسے خاک شفا بنا دیا جاتا ہے۔ اب سنیے حدیث سناتا ہوں، اب متصل ہو گئے آپ، تمہید باندھنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کو ڈائریکٹ متصل کرتا ہوں کہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں مولانا۔
अब मैं आपको बताऊं कि आप मस्जिद में जब जाते हैं तो आप एक थोड़ा सा चीज इसको उठाते हैं जिसे सजदेगाह कहा जाता है, उसको अपने सर पे, उसी पे सजदेगाह से अपने सर को मेराज तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या आप रखते हैं, इसका क्या कमाल है? ये मिट्टी का कमाल क्या है कि आप इसको मस्जिदों में सजा कर रखते हैं और सजदों की मेराज तक इसे पहुंचाते हैं। मकसद क्या है आप सुनिए। हमारा इमाम फरमाता है अकलत तीन हरामुन, क्या मिट्टी का खाना हराम है, और जो मिट्टी खाए लम युसल्लु अलैह, जो मिट्टी खाए उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। देखिए कमाल क्या है। अब मैंने तारीख को जब खंगाला, देखिए खाके शिफा से मुत्तसिल करूंगा इंशाअल्लाह कि क्या मकसद है कि परवरदिगार के वली कह रहा है कि अकलत तीन हरामुन, और जो खाए लम युसल्लु अलैह, और जो खाए उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। मकसद क्या है? जब हमने तारीख को देखा तो पता चला इससे तुम्हारे बाप आदम को बनाया गया है, इससे तुम्हारे बाप आदम को बनाया गया है, इसलिए हराम हो गई। अब जुमला दूं क्या कि आदम को मिट्टी से बनाया गया। अब पता चल गया जिस मिट्टी से आदम बने थे वो खाके शिफा नहीं थी, और हुसैन का जहाँ खून गिरा वो खाके शिफा बन गई। जहाँ पर हुसैन का खून गिरा वो खाके शिफा हो गई। जब बात किया है तो फिर लेके चलता हूँ। अब इमाम फरमाते हैं कि जिसने अकलत तीन मिन शियतना, जो मेरे शिया खाके शिफा को खाएंगे, जो मेरे शिया खाके शिफा को खाएंगे तो उनको शफाअन नाफिआ, इनको पूरी की पूरी शिफा देगी ये खाक। मौजू से मुत्तसिल किया है, सुनिएगा कि खाके शिफा आपको पूरी की पूरी शफाअन नाफिआ, पूरी मुकम्मल आपको शिफा देगी। अगर दुश्मन खाए तो क्या होगा? का उस तरीके से होगा जैसे भट्टी पे अगर भेड़ को रख दिया जाए, अगर उसकी जो चर्बी जलती है उसी तरीके से दुश्मन के पेट की चर्बी गल जाएगी अगर कोई दुश्मन खाएगा। बता रहे हैं इमाम कि हमारे चाहने वाले अगर खाएंगे तो ये शिफा देगी, अगर दुश्मन खाएंगे उनकी चर्बी पेट की गल जाएगी। फिर सुनिए ये मिट्टी का कमाल है, और मिट्टी बड़ी मिट्टी है, बाकमाल मिट्टी है। अगर इंसान खाए तो शिफा होता है। एक आपने सुना होगा और देखा भी होगा जिंदगी में, आप मुझसे सब बुजुर्ग हैं कि आपने देखा होगा कि मिट्टी जब हो जाती है किसी की, और सब इंसान को पता है कि हर इंसान के अंदर 4 चीज से बना है, आग, मिट्टी, हवा, आग, 4 चीज से बना है। लेकिन अगर किसी की मैयत हो जाती है, मर जाता है, तो किसी को ये नहीं कहा जाता कि वो आग है, कोई हवा है, वो हवा है, क्या कहा जाता है? मिट्टी। तो इसका मतलब ये पता चला कि जिस्म में मिट्टी की मिकदार ज्यादा है। और सुनिए फिर हदीस सुनाता हूँ, मैं आती हूँ हदीस सुनाने का, मैं ऐसी वैसी बात ना करूंगा कि कुल्लो शैइन यरजउ इला असले, हर शय अपने असल के तरफ पलटती है। अब सुना होगा आपने, मैयत हुई दुबई में, भैया कहरा में मैयत आ रही है, इसका क्या मकसद है? कुल्लो शैइन यरजउ इला असले, अपने असल के तरफ पलटा देती है, पलट जाती है। अब ये पता चला सऊदी में वो मरा था, लेकिन वापस कहरा में आके बता रहा है इसकी असल कहरा थी, उसकी असल कहरा थी। आप सुनिए, बस दाद ना दीजिए मुझे, दाद नहीं हूँ, आप सुनिए और मार्फत देखिए कि क्या है मिट्टी और खाके शिफा क्या है। कि कुल्लु शैइन यरजउ इला असली, हर शय अपने असल के तरफ पलटती है।
ये मिट्टी है, बाकमाल मिट्टी है, आपके अंदर जो मिट्टी है। अब सुनिए, इमाम ने फिर फरमाया कि ये मिट्टी का क्या कमाल है। इमाम के चाहने वाले बैठे हुए तो और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हजम नहीं होती है बात, ये बात सच है और हर दौर में होते हैं। कुछ लोग, अगर आप 10 लोग बैठे रहेंगे तो एक जरूर होता है ऐसी बात करने वाला जो हर चीज में नुक्स निकालता है। तो इमाम का दरबार है। इमाम ने कहा हमारे शिया के अंदर अल्लाह जब खल्क कर रहा था तो करबला की मिट्टी को रखा, जब हमारे शिया को बना रहा था तो हमारे शिया के जिस्म में खाके शिफा को रखा। उसने कहा मौला खाके शिफा, और ये आपके चाहने वाले, आप खुद क्या जानो हमारे चाहने वाले क्यों होते हैं। अब सुनिए, जो यहाँ बैठे हुए हैं ये क्यों आए हैं। अब सुनिए, कुल्लो शैइन यरजउ इला असले, और ये इमाम की हदीस आपने महफूज की है कि तीनत में रखा गया है अकबर की खाक को, अकबर की खाक को आपकी तीनत में रखा गया है। बताना क्या चाहते हैं। अभी लॉकडाउन कुछ साल पहले, कुछ अर्सों पहले गया है, आपने देखा होगा सब एक दूसरे से भाग रहे थे, कोई अपनी जान बचा रहा था, कोई कहीं भी नहीं जा रहा था। तो ये है, मस्जिदों में 5 लोग नजर आते थे, लेकिन आप आजादारी में क्यों इकट्ठा हो रहे थे। हमें इजाजत मिल जाए, हम हुसैन की आजादारी करें, हम हुसैन की आजादारी करें। मकसद क्या है ये आपका। अब इमाम की हदीस महफूज करिए। इमाम ने कहा इनके अंदर तीनत रखी गई है, इसीलिए ये हुसैन की तरफ खींचे चले आते हैं, ये हुसैन की तरफ खींचे चले आते हैं। ये देखिए तीनत का कमाल है कि आप खींचे चले आते हैं। अब ये सोचिए कि कितने लोग आए हैं, कितने लोग नहीं। ये तीनत का कमाल है और शहजादी की तौफीक का कमाल है। जिसे शहजादी तौफीक देती है वो यहाँ पर आता है। और इस फर्शी अदा का कमाल है कि वो आ ही नहीं सकता जो हुसैन के मकसद को भूल गया। सुनिए, खाके शिफा का कमाल क्या क्या है और खाके शिफा क्या है। महफूज किया आपने कि क्या खाके शिफा है कि इंसान पलट जाता है, इंसान अपने अस्ल की तरफ पलट जाता है। सुनिए, असली शहादा। अब आप यूट्यूब, गूगल पे जब सर्च करेंगे ये कौन है, का ये चाहने वाले हैं किसके, अब तक ये चाहने वाले हैं इनके। अब इनके दिल में, इनके मिट्टी में अकबर की खाक को रखा गया था। ये प्रोफेसर हैं जामिअतुल अल-अज़हर के, इनके अंदर अकबर की तीनत को रखा गया था। इसीलिए एक सेमिनार में ये गए और इन्होंने एक जुमला कहा, जुमले को महफूज करिएगा। इन्होंने कहा कि मुझे शहजादी माफ करे कि मैं जिंदगी भर उनके दुश्मनों की तारीफ करता रहा, जिंदगी भर उनके दुश्मनों की तारीफें करता रहा, और मुझे भरोसा है जो हुर को माफ कर सकती है वो मुझे भी माफ कर सकती है। जो हुर को, अब सुनिए, कुल्लो शैइन यरजउ इला असले, ज़हन में महफूज करिएगा। अब सुनिए, ये सेमिनार में वापस गए, सेमिनार से मिस्र की तरफ, और जाने के बाद अब इन्हें वहां के लोगों ने सुना कि इन्होंने विलायत का इकरार कर लिया है। अब इन्हें फांसी दे दी गई और 3 दिनों तक मिस्र में इनकी लाश को गिराया गया। लेकिन इनका कमाल देखिए, हुसैन का कमाल देखिए, मिट्टी का कमाल देखिए। आपके अंदर तीनत है, इनके अंदर भी तीनत थी। 3 दिन तक फिराया गया मिस्र में लाश को, और इनकी कब्र है करबला में। इनकी कब्र है करबला में। क्या बताना चाहते हैं मौलाना। कहा कुल्लो शैइन यरजउ इला असले, इनके दिल में हुसैन की मोहब्बत आ चुकी थी, इसीलिए फरिश्तों ने नहीं, लोगों ने इन्हें पहुंचा दिया करबला के जानिब। कभी कभी फरिश्ते नहीं, कभी कभी इंसान
इंसान को लेकर उसकी असल तक लेकर आ जाता है। कभी मुंबई में कोई मर जाए उसके माँ बाप लेकर उसके गाँव तक आते हैं। ये है कुल्लु शैइन यरजू इला असली। अब सुनिए हसन शहादा। अब ये देखिए क्या कमाल बात है ये। और आप YouTube पे जैसे सर्च करेंगे तो एक वीडियो आपको मिलेगी। इनकी लाश को इनके गर्दन में रस्सी डली हुई है और फिराया जा रहा है। बड़ा वीडियो में आप अभी मैं देख रहा था, इंग्लिश में वीडियो है, उसको मैंने पूरी वीडियो भी देखा है। तो मेरा दिल चाहा कि यार मैं पढ़ूं, रात को मुत्तसिल भी कर दिया हाथी शिफा से और मैं मुस्तकिल हो भी गया। हाथी शिफा का कमाल देखिए। अब ये कहते हैं, देखिए तीनक में रखा गया तो कमाल कैसा होता है जब तीनक में अकबर की खाक की मिट्टी अगर आ जाए। अब सुनिए, अब ये जब एक सेमिनार में थे तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं इनका ईमान सही में ईमान है कि नहीं है। अभी तो इनके ईमान को एक लड़के ने चेक किया तो लाल ने चेक किया, कहा मौलाना अल्लामा ये बताइए कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब क्या किसी और के सामने इस्तेमाल किया जा सकता है? तो फौरन उन्होंने कहा सुनो, और हमारे उलमा का भी मुत्तफ़िक़ अलैह फैसला ये है कि 11 इमाम के सामने आप अमीरुल मोमिनीन का लक़ब नहीं लगा सकते सिवाय अली इब्न अबी तालिब के साथ ही। सुनिए, अब ये कहते हैं हाज़ा इस्मुन मुख्तस्सुन बिल इमाम मन तसम्मा बिही गैरो फहुवा मुअन्नस। जिसने भी लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन को चुराया, अली के अलावा किसी ने भी लगाया, जिसने भी लगाया, कहा हाज़ा इस्मुन मुख्तस्सुन बिल इमाम मन तसम्मा बिही गैरो फहुवा मुअन्नस। जिसने भी लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन को अपने सामने लगाया, समझ लेना ना तो वो मर्द है ना तो वो औरत है। ये देखिए ईमान है जब ये पलटता है, जिसके अंदर अकबर की खाक की मिट्टी आ जाए वो पलट जाता है। बात मैंने तमाम की, जानता हूँ थक गए लेकिन समझने में दिया है, कम से कम 20 मिनट तो हो जाए। मुकम्मल सुनिए कि आप मैं सुना इसलिए रहा हूँ ताकि हम मार्फत जानिए कि हुसैन की बस्ती की खाक की क्या फजीलत है। मैं ऐसी सिलसिले बात नहीं करना चाहता, जो आप सुन चुके हैं उस बातों को करूंगा तो आपके लिए नया ना होगा, बल्कि मैं नई बात करता हूँ ताकि मार्फत में इजाफा हो जाए और आप मेरी मजलिस को महफूज करें। और मार्फत में जब इजाफा होगा तो जरूर नमाज का रोजा करेंगे। मार्फत का यही कमाल होता है, अली के साथ नमाज को भी रखा जाता है। सुनिए, अब ये आपको वाक़या मैंने सुना दिया कि जिसके अंदर हुसैन की बस्ती का देखिए एक अल्लामा गुजरे हुए हैं, उन्होंने अब देखिए कि क्या खाके शिफा है, उन्होंने उठाया, मिट्टी उठाने के बाद कहा कि मिट्टी है, उठाने के बाद उन्होंने कहा ला ये क्या है, ला बल हिया एक्सीर, कहा ये मिट्टी नहीं, मिट्टी से अफजल है। फिर कहते हैं ला बल हिया एक्सीर, नहीं ये मिट्टी नहीं सोना है। लामा फरमाते हैं नहीं आप कभी ये बात खत्म ना हुई होगी कि ये सोने से इस्तेमाल किया जा रहा है, सोने क्या खाक होती है। अगर ये कमाल ये है कि अगर मिट्टी को हाथ में लें और कुछ कीमी अमल के जरिए से मिट्टी को सोना भी बनाया जा सकता है। जनाब मीज़ा ने बताया कि सुनिए, मौलाना ने उठाया कल्ला बल हिया एक्सीर, नहीं मिट्टी नहीं ये सोना बनाने वाली है। अब उनको ये नहीं अच्छा लगा, उन्होंने कहा नहीं मिट्टी नहीं, अब मिट्टी से ज्यादा का ये वो है जो मशीयतुल्लाह है। ये मिट्टी नहीं, अल्लाह की मशीयतों में से एक मशीयत है जिसे खाके शिफा कहा जाता है। अब सुनिए, जॉर्ज जुज़दा लेके चलता हूँ, लेकिन अब अल्लामा का एक जुमला सुनाता हूँ। उन्होंने कहा आपने सुना होगा कि काबा का आप तवाफ करते हैं, चक्कर लगाते हैं, क्या जात है इस मिट्टी की और इस तर की, करबला की, कि काबा खुद आके यहाँ पर चक्कर लगाता है। क्या कमाल है करबला का
कि करबला में आकर काबा खुद चक्कर लगाता है, काबे को बचाने वाला हुसैन है, और हुसैन के खून से मुत्तसिल हो जाने वाली इस खाक के बारे में बता रहा हूँ। जाओ जुज़दा, सुनिए, इनके भी तीनत में हुसैन की बस्ती की खाक को रखा गया था। और इनकी दलील क्यों है? क्योंकि ये ईसाई थे और ये बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इल्म हासिल करूँ, इल्म को हासिल करूँ। तो उन्होंने, उनके भाई ने कहा कि हाँ जाओ तुम सेमिनार में अटेंड करो और जाके बड़े बड़े उलमाओं की बातें सुनो, साइंटिस्टों की बातें सुनो, ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए। तो ये जाते थे सेमिनार में, इनके इल्म में इजाफा नहीं होता है, तो ये आते भाई से कहते हैं मैं बड़े सेमिनार में जाता हूँ, बात समझ नहीं आती है। और कहा, उसके भाई ईसाई है, वो कहता है जाओ तुम नहजुल बलागा को पढ़ो, सलामत रहिए, कि जाओ नहजुल, ईसाई कह रहा है जाओ नहजुल बलागा को पढ़ो। अब उसने खोला, पहले वर्ग को खोला और खोलने के बाद पढ़ा, क्या पढ़ा? कि कायनात का हर जर्रा जिंदा है तो पानी की वजह से, पानी की वजह का। उसने फौरन नहजुल बलागा को बंद कर दिया था। पुराना आलिम है और पुरानी बातें कर रहा है, पुराना आलिम है पुरानी बातें कर रहा है। उसने नहजुल बलागा को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद ये एक सेमिनार में गया जहां पर एक बड़ा बुजुर्ग साइंटिस्ट आया हुआ था। और पहले इन्होंने बहुत तकरीरें सुनी छोटे छोटे साइंटिस्टों की, और एक बुजुर्ग आया, उसने कहा मैंने अपनी पूरी जिंदगी का मुशाहिदा जब किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि कायनात की जितनी शय जिंदा है तो वो पानी की वजह से। सुनिए, पानी की वजह से। अब इसके जहन में आया, इतना पुराना आलिम बात कर रहा है इस आलिम जैसी। वो गए और जाने के बाद ईसाई कहता है, जॉर्ज जुज़दा कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में 300 बार नहजुल बलागा को पढ़ा। अब सुनिए उसका किरदार, और शिया और जितने भी मुसलमान हैं, अब ये बताइए किसी ने भी नहजुल बलागा को एक बार पढ़ा है? कोई नहीं कहेगा कि हमने पढ़ा है, यहाँ तक औलाद को भी ना पढ़ता होगा, और यहाँ तक और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखा भी ना होगा, सिर्फ सुना है। कुछ लोग ने देखा होगा, ये बता रहा हूँ, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। नहजुल बलागा का कमाल ये कलमाते के साथ को भी अगर पढ़ लेंगे तो आप सुनिए, जॉर्ज जुज़दा ने अब ये पढ़ा और पढ़ने के बाद एक किताब लिखी, अली और अदालत। ईसाई कह रहा है कि अली और अदालत, बात बस तमाम कर देता हूँ, लेकिन सुन लीजिए कि क्या है हुसैन की बस्ती की खाक, जिसके अंदर आ जाए वो मार्फत तक भी पहुंच जाता है, इसको खा ले तो शिफा भी पा जाता है। कमाल देखिए कि उस बस्ती की खाक है जहां सिर्फ हुसैन का खून गिरा है, हुसैन का खून गिरा है। अब सुनिए, जॉर्ज जुज़दा ने कहा मैंने एक किताब लिखी, अब मैंने चाहा मैं ईसाई था। वो कहता है कि हमने किताब जब लिख ली तो और हमने अदबियत के 5 जिल्दों में मुश्तमिल है, और उसने लिखा कि अली की अदालत कैसी थी, और ये जितनी दिन भी अली ने अदालत की है, खिलाफत पर बैठे हैं, पूरी खिलाफत को उसने नश्र किया है उस किताब में। कहता है कि मैं जब मुसलमानों के पास गया, सुनिए, जब मैं मुसलमानों के पास गया और चाहा कि इस किताब को नश्र करूं, तो मुसलमान ने कहा अगर तुमने फला के बारे में लिखा होता तो छपवा देते, फला के बारे में अगर लिखा होता तो छपवा देते, लेकिन तुमने अली को सिर्फ क्यों चुना? मैं उनकी फजीलतों में क्या लिखा है? कहा अब मैं फिर गया दूसरे मुसलमानों के अंदर का शायद कोई छपवा दे,
जॉर्ज उस्ताद कहते हैं शायद कोई छपा दे, मैं जाता रहा सब ये कहते थे किसी के बारे में, इनके बारे में लिख दो, इनके बारे में लिख दो, इनके बारे में लिख दो तो हम छपवा देंगे, इसी बात को इन्हीं के बारे में लिख दो, नाम बदल दो, हम छपवा देंगे। लेकिन कहा जॉर्ज उस्ताद ने, हमने उस किताब को छपवाया तो नहीं उनके पैसों से। मैं बड़ा मायूस होकर एक चर्च के पास जाकर बैठ गया। एक पॉप निकला, पादरी निकला, और निकलने के बाद कहा तुम क्यों मायूस हो? उसने कहा क्यों मायूस हो जॉर्ज उस्ताद, तुम क्यों मायूस हो? उसने कहा मैं इसलिए मायूस हूँ, मैंने इस्लाम के खलीफा के बारे में, अली के बारे में किताब लिखी थी, लेकिन मुसलमान ये कहते हैं फला के बारे में लिख दो तो छपवा देंगे, फला के बारे में लिख दो तो छपवा देंगे। अब सुनिए, वो कहता है, पादरी कहता है कि सुनो हम पैसा देंगे, तुम जाओ छपवा दो, तुम जाओ और छपवा दो। हुसैन की बस्ती की खाक है, और देखिए किताब लिख रहे हैं कि देखिए, अब कहता है, पाप कहता है, पादरी कहता है जाओ छपवाओ हम पैसा देंगे। और जॉर्ज उस्ताद ने सवाल किया, मुसलमानों ने तो पैसा नहीं दिया, आप पैसा क्यों दे रहे हैं? मुसलमानों ने पैसा नहीं दिया कि फला के बारे में तो हम दे देंगे, लेकिन आपने क्यों दे दिया? कहा हमने सारी खिलाफत को देखा, हमारे ऊपर बड़े जुल्म हुए, हमने सारी खिलाफत को देखा, हमारे, ईसाई कहता है हमारे ऊपर बड़े जुल्म हुए, हमें बड़ा सताया गया, हमारे हक को मारा गया, हमें हमारे हक को नहीं दिया गया। लेकिन जब अली का दौर आया तो अली के करीब पहुंचे, हमने कहा हमारे हक को देंगे। कहा अली की दो निगाह नहीं है, अली की दो निगाह नहीं है। कहा जैसे मैं मुसलमान को देखता हूँ वैसे ईसाइयों को भी देखता हूँ, अली की निगाह सिर्फ एक है, अली की निगाह एक है। देखिए ये है जॉर्ज उस्ताद जिन्होंने किताब को नश्र किया है, और किताब को आपको महसूस भी किया, बातें मैंने आपके समाज में की है कि खाके शिफा से मुत्तसिल की चगार भाई के पास से, क्योंकि इन्होंने मुत्तसिल कर दिया हमें खाके शिफा के जाने। जो खाक वो खाक है जिससे अगर कोई इंसान खाए तो शिफा नाफिया खाता है, शिफा नाफिया पूरी मुकम्मल शिफा पा जाता है। तो शक मत किया करो कि खाके शिफा के लिए शिफा देगी। और वो पुरुष जो रखते हैं उनके ये भेड़ की चर्बी के तरीके निकल जाएंगे जो खाएंगे, वो खाके शिफा का कमाल है। और ये खाके शिफा वो खाके शिफा है। आइए करबला में आपको लेके चलता हूँ। खाके शिफा क्यों बनी खाके शिफा? क्योंकि यहाँ पर हर नदियों पे फिल्टर नदी, मूसा चल रहे थे और से फिल्टर नदी खून बहा, दूसरा आए, हर नबी यहाँ पर आए, जो भी नबी आए सबको अजमत हुई, किसी का खून बहा, किसी को सख्त लगा। इसलिए यहाँ पर सारे नबियों का खून मुश्तमिल है, मिला हुआ है, मुत्तसिल है। और जब हुसैन का खून यहाँ पर मिला तो ये खाके शिफा बन गई, खाके शिफा बन गई। ये कमाल है कि सारे नबियों के खून यहाँ पर मुत्तसिल हो चुके थे, लेकिन जैसे ही हुसैन का खून यहाँ आया और हुसैन का खून यहाँ पर मिट्टी से मिला तो अकबर की खाके शिफा बन गई। और सुनिए, आज मुहर्रम की 7 तारीख है और आज मसाइल आप सुनते हैं जनाबे कासिम का, और मसाइल का नाम सुनिए। अब ये खाके शिफा धीरे धीरे अली अकबर शहीद हुए, खून मिल गया, अब्बास अकबर हुए, खून मिल गया, सारे अंसार खालिफा शहीद हो गए, खून इस खाके शिफा में मिल गया। अब सुनिए, जनाबे कासिम वो हैं जो 3 बरस के हैं और हसन की शहादत हो रही है, इनके जिगर के टुकड़े हो रहे हैं। तो जनाबे हसन ने बुलाया, ऐ कासिम जरा करीब आओ, तुम्हें मैं तावीज़ दे दूं, जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत का वक्त पड़ेगा तो इस तावीज़ को खोल लेना। अल्लाह अकबर। अब कासिम करबला के मैदान में देख रहे हैं कि एक एक करके मोहम्मद शहीद हो गए, अंसार शहीद हो गए, महबूब कल्बी शहीद हो गए, जौन शहीद हो गए।
وہ شہید ہو گئے، حبیب شہید ہو گئے۔ اب قاسم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں چچا ارے ہم کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ قاسم تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا صدمہ کافی ہے، قاسم جاؤ واپس جاؤ۔ پھر قاسم آئے، اب قاسم سے ایک سوال کیا، جب قاسم نے اصرار کیا نا تو قاسم سے سوال کیا حسین نے، اے قاسم یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ ارے قاسم کہتے ہیں میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے یہ جذبہ ہے کربلا کے شہزادے کا۔ قاسم جاتے ہیں، ڈیوڑی پر بیٹھ جاتے ہیں، ام الفضل آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں سب شہید ہو گئے، اے قاسم تم زندہ ہو۔ ارے قاسم نے کہا اماں جان ہم چچا سے اجازت مانگتے ہیں لیکن چچا اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ام الفضل نے کہا جب تمہارے بابا کا آخری وقت تھا نا تو انہوں نے تعویذ تمہاری باندھی تھی، تمہاری تعویذ باندھی تھی، اس تعویذ کو کھولو۔ ارے جیسے ہی قاسم نے اس تعویذ کو کھولا نا، اس تعویذ میں لکھا تھا کہ حسین اکیلا ہوگا تو قاسم تم قربان ہو جانا۔ اللہ اکبر، اب قاسم نے جیسے ہی دیکھا قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ قاسم دوڑے دوڑے حسین کے قریب آئے، کہا چچا لیجیے میرے بابا کی تحریر لیجیے۔ حسن کی جیسے ہی تحریر حسین نے دیکھی نا رونے لگے، آنکھوں سے لگایا اور لگانے کے بعد قاسم کو اجازت دے دی۔ قاسم سوار نہیں ہو سکتے تھے، قاسم کا قد چھوٹا تھا، حسین نے سوار کیا۔ قاسم چلنے کے بعد میدان میں آئے، حملہ کرنا شروع کیا۔ ظالموں نے کہا اس کو گھیر کے مارو، بنی ہاشم ہے۔ گھیرا گیا، سپاہیوں نے جیسے ہی گھیرا نا قاسم پر کسی نے تیر سے مارا، کسی نے تبر سے مارا، کسی نے نیزے سے مارا۔ زخمی ہو کر قاسم زین سے زمین پر آیا۔ جیسے ہی آواز دی چچا جان مدد کو آئیے۔ اب حسین بھاگے، علی اکبر بھاگے، عباس بھاگے۔ فوج نے سوچا حسین حملہ کرنے آ رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ قاسم کی آواز چچا مدد کرو۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حسین پہنچے نا قاسم کا لاشا نظر نہیں آتا ہے، قاسم کا لاشا دکھ نہیں رہا ہے۔ حسین نے کہا قاسم کہاں ہو؟ نظر نہیں آتے۔ قاسم کہاں ہو؟ نظر نہیں آتے۔ تمہیں تمہارا چچا بلا رہا ہے۔ تیسری بار کہا قاسم تمہیں وقت کا امام بلا رہا ہے۔ قاسم کا لاشا بلند ہوا، حسین نے بدبو میں باندھا اور لے جا کر ام فروا کے سامنے رکھ دیا۔ اب ام فروا نے کہا قاسم تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، بڑا قاسم بڑا مصیبت۔